In this particular video, I'll help you analyze scientifically and via mathematical metrics as where you stand in the current prelims preparation. I'll also tell you how can you customize ahead for the coming weeks as per your needs. Then lastly, we will talk about a 90 days full-fledged plan whereby we will again handhold you if you have not started the prelims preparation yet, or if you must miss the bus earlier to start your prelims prep with us. Then you can follow this particular 90 days plan and you will be completely on track. That's a promise. The timestamp for this particular thing, the 90 days full-fledged plan, is given in the description box. So if somebody directly wants to see it, they can just click there and jump onto it. Alright, okay. So, hello everybody, my name is Satyam Jain. Welcome to Understand UPSC, a platform of the students, by the students and for the students. So since a long time we have been preparing for prelims. It's more than like nearly 2 months now since we have been preparing for prelims, and depending upon your preparation you can stand at various other levels. है ना, आप सब अलग अलग लेवल्स पे हो सकते हैं, बट इट इज सेड दैट समथिंग दैट कांट बी मेजर्ड कांट बी इम्प्रूव्ड. इफ़ यू कांट मेजर समथिंग यू कांट इम्प्रूव इट. बट दिक्कत क्या होती है कि हमें हमारी प्रीलिम्स प्रेप की मेजरमेंट का तो पता ही नहीं है, हम बस करते जा रहे हैं, बट वी नेवर लुक बैक एंड सी कि हमने कितना कर लिया. उसको कोई मैथमेटिकल मॉडल हो सकता है क्या? कैन आई मेजर इट? 2 किलो हो गई है, 4 किलो हो गए, कैन आई मेजर इट? Because only when you measure and you plan ahead, you can improve upon your lacunas and your loopholes. Right? Understood? So I'm here to give you that particular mathematical model today. ध्यान से सुनना, listen to it carefully, be honest with yourself is all I need. चलिए, so let us analyze your prelims preparation. ये एक mathematical matrix है. If you want, you can take a screenshot of it right now. Take a screenshot. Okay, done. चलो ठीक है, let me explain it to you. Please listen to this carefully. I have here divided the GS paper 1 of prelims as per subjects and the weightage that it holds in your preparation. Based on those weightage categories, I have further divided it into various modes of preparation. If you have completed the syllabus, which means the standard books, if your PYQs of that particular topic is done of at least say 10 years, then have you attempted tests or MCQs and made notes out of that particular subject, and lastly, have you made some short notes, revision notes, last minute notes? Are they ready? So these are the 4 criterias whereby your prelims preparation for GS paper 1 fits. And I assure you, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए. You don't need anything else other than these 4 criterias. PYQs करो, उसके बेसिस पे सिलेबस कंप्लीट करो, टेस्ट अटेम्प्ट करो, MCQ अटेम्प्ट करो, उसके नोट्स बनाओ, और लास्ट में आपके पास रिवीजन नोट्स रेडी होने चाहिए. बीट ऑफ स्टैटिक, बीट ऑफ करंट अफेयर, बीट जो भी. Clear? Now let me take you through it very quickly. So this is polity. It has a weightage of 15. This weightage is out of 100. Okay, out of these 15, 4 marks are for syllabus completion. Right? Now if you have revised the syllabus at least once, you can give yourself 4 out of 4. If you have just gone through the Lakshmikant book once, you can give yourself 3 out of 4. If you have not completed the syllabus at all, 0. This is how. Then have you completed 10 years of prelims questions of polity? If you have, 3 out of 3. If you have not, proportionally you can decrease it to 2, 1 and 0. Then have you attempted the tests or MCQs? At least 100, 150, 200 MCQs have you attempted and made notes out of them? If yes, complete 5 marks. If no, the marks will decrease proportionally. Then do you have some ready notes for your last minute revisions? अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको पॉलिटी को मुझे एक दिन में रिवाइज करके देना है, to revise in 1 day and tell me regarding your polity preparation, will you be able to do that? क्या आपके पास ऐसे कोई नोट्स हैं? क्या आपकी बुक इतनी अच्छी तरीके से हाईलाइटेड है? If you are there, depending upon the proportion, you can give the marks. Now you will realize that for every subject there is a different weightage, and not just a different weightage but a different weightage of the following criterias as well. For example, in economy, revision notes are not that important, and that is why it is ranked on a lower pedestal. However, PYQs are more important, and syllabus completion and concepts is absolutely important. That is why they are rated higher. Understood? But in history, notes are absolutely important, because if you do not have revision notes, you will never be able to recall history. You will never be able to rectify it. समझ में आई बात? So that is why we have given a higher percentage, a higher proportion to history revision notes. Clear? So economy, this is the weightage, and if you have completed the syllabus, if you are done with the syllabus, if you are done with your basic resource, then you can give yourself 5 out of 5. All this is we are talking about static. Current affairs का अलग से नीचे mentioned है. I'll talk about that. Okay. Then if you are done with at least 10 years of PYQs,
देन इफ़ यू हैव डन से इको 550 की प्लेलिस्ट है हमारी, अगर वो कर लिए आपने, या और टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए हैं 2-3, अगर एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लिए, उनके नोट्स बना लिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई है उन नोट्स को बना के, तो 5/5, एल्स उसी नंबर पे डिक्रीज करते जाना। देन रिवीजन नोट्स उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जैसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि आपके उनके रिवीजन नोट्स रेडी है इकोनॉमी में, है ना, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती है, मे बी से कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको, इन्फ्लेशन बॉन्ड यील्ड का कोई कॉन्सेप्ट है, या एमएसएफ क्या होता है, उसमें क्या पॉइंट्स हैं, एलएएफ क्या होता है, उसके क्या पॉइंट्स हैं, सीएआरआर एसएलआर में क्या डिफरेंस है, ऐसे कुछ छोटी चीज़ों के नोट्स है क्या, या फिर ऐसे प्रॉपरली आपका जो मटेरियल है वो हाईलाइटेड है क्या, ताकि आप क्विकली उसको ग्लैंस थ्रू कर सको। आर यू रेडी विद दैट? समझ में आ गया? देन सिमिलरली एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी. Okay, now these including the mapping portion also, we have completed the mapping series, so this will include the static, will include the mapping portion also. So these 9 marks are combinedly for environment and geography, for standard sources completion, for geography that is NCERT, for environment that is PMF for Shankar, and then similarly completing the entire mapping of geography and environment. Then this belongs to have you done the PYQs. So आप देखोगे जैसे geography के PYQs उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि PYQs अगर इसके आते हैं तो वो आप स्टैटिक में कवर कर लेते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कभी गंगा के बारे में आया तो गंगा आप स्टैटिक में पढ़ लोगे, बट एनवायरनमेंट के PYQs बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज द नेशनल पार्क्स आर रिपीटेड एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? देन हैव यू डन द टेस्ट एंड मेड नोट्स आउट ऑफ इट, एंड लास्टली डू यू हैव रिविजन रेडी नोट्स? अब बताओ, आप एनवायरनमेंट में नोट्स नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? दैट इज वाई इट हैज़ अ हायर नंबर। क्लियर? बात समझ में आ गई? देन लेट्स मूव टू हिस्ट्री. अब हिस्ट्री में आप देखोगे कि आई हैव गिवन वेरी लेस proportion to PYQs and MCQs, क्योंकि ये आप कितना भी कर लो उसका कोई एंड नहीं है, बट यू हैव टू हैव योर ओन नोट्स, सो दैट इज वाई इट इज एट द हाईएस्ट लेवल. क्लियर? देन साइंस एंड टेक, सिमिलरली स्टैटिक डन है क्या, PYQs कर चुके हो क्या, MCQs लगाए हैं क्या, एंड नोट्स बना चुके हो क्या, राइट? दैट इज वॉट 10 मार्क्स कंप्राइज ऑफ. देन लास्टली करंट अफेयर्स. जिन लोगों का करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन पूरा हो गया है ना, टेक हियर 12 मंथ्स एटलीस्ट, है ना, 12 मंथ्स ऑफ मंथली मैगजीन. अगर आपके डन हो गए तो पूरे 6 में से 6 मार्क्स. अगर ORN बना रखे हैं, नोट्स बना रखे हैं, तो और 6 मार्क्स. जो लोग PT 365 पे डिपेंडेंट है वो यहाँ पे अपने मार्क्स रिड्यूस करेंगे अकॉर्डिंगली. क्लियर? बात समझ में आ रही है? सो दिस इज हाउ दिस एंटायर मैट्रिक्स लुक्स लाइक. आई देन लास्टली, इफ यू हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स पहले किसी भी अटेम्प्ट में, एनी ऑफ योर प्रीवियस अटेम्प्ट, गिव योरसेल्फ अ +10. पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है? अभी बैठो, इसको कैलकुलेट करो, एंड देन टेल मी योर टोटल स्कोर. इफ योर टोटल स्कोर इज whatever your total score is, tell me. अगर ये 70 से कम है, then make sure that you are reaching 70 by March 10 at max. I'm giving you 50 days. If your score is lower than 70, then make sure that you are hitting 70, the bar of 70 by March 10. If you are doing that, if your score touches 70, then you will come exactly where the race is there. Okay? Then in the comment box, tell me your current score, and you can also tell me the breakup of your score. प्लीज़ बी ऑनेस्ट, प्लीज़ बी वेरी ऑनेस्ट. यहाँ पे डिस्प्ले करके कुछ नहीं मिलेगा. 10 नंबर भी आ रहे हैं तो बताओ, क्योंकि मैंने बोला इफ़ यू कैन नॉट मेजर इट, इफ़ यू कैन नॉट बी ऑनेस्ट अबाउट इट, यू विल नेवर बी एबल टू इंप्रूव अपॉन इट. तो प्लीज़ बी ऑनेस्ट, है ना, झूठ नहीं बोलना है खुद से. दैट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. इंसान जिस दिन खुद से झूठ बोलना शुरू करता है उस दिन उसका पतन शुरू हो जाता है. पतन नहीं करना है, उत्थान करना है. ठीक है? वी हैव टू राइज, वी डू नॉट हैव टू फॉल. Clear? So that is how you can have an honest opinion, and you can tell me. Now, based on this analysis, if your score currently not on 10th March, if your current score is greater than equal to 70, perfect, बेहतरीन जा रहे हो प्रिपरेशन में, चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बेहतरीन जा रहे हो, जस्ट हैव टू कीप गोइंग. देन इफ योर स्कोर इज 50 to 70, मतलब आप तो बिल्कुल ऐसे प्रीलिम्स क्रैक करने वाली लिस्ट में हो. देन इफ योर स्कोर इज बिटवीन 50 to 70, इट इज़ गुड, बट यू हैव टू कीप द पेस अप. मतलब आपने कोई 1-2 दिन इनकन्सिस्टेंट रहे हो, उसकी वजह से स्कोर कम है, किसी और पेपर को दे रहे होंगे, CSIR का पेपर, हरियाणा का पेपर, फलाना का पेपर, ढिमाका का पेपर, तो आपका स्कोर थोड़ा सा कम है. मेक श्योर इट इज़ गुड, दो इट इज़ वेरी गुड, बट मेक श्योर दैट यू कीप द पेस अप. देन if your score is between 30 to 50, that means you have been highly inconsistent in your preparation. Now, जितना इसमें 30 से 50 में जितना लोअर, जितना 30 के साइड, उतना ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी. ओके, दिस विल क्रिएट इश्यूज इफ नॉट रेक्टिफाइड. ये प्रीलिम से बाहर कर देगा, इनकन्सिस्टेंसी प्रीलिम से बाहर कर देगी, अटेम्प्ट खराब करा देगी. 2025 का फॉर्म भरना पड़ेगा, मैं अभी लिख के दे रहा हूँ. तो इनकन्सिस्टेंट अगर हो, इसको रेक्टिफाई कर लो आज से शुरू करके. हाउएवर द गुड थिंग इज दैट यू हैव द विल पावर टू डू इट. नहीं तो आप इतना भी नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते आप इतना.
अब ऑब्वियसली इसका मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का 50 स्कोर है और किसी का 49 है तो उनमें बहुत मेजर डिफरेंस है, नहीं ऐसा नहीं है, राइट। यू ऑल्सो लाई इन द गुड ब्रैकेट। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये एक स्पेक्ट्रम की तरह है, एक मैट्रिक्स की तरह है, अपने आपको इस पर एनालाइज करना है आपको। जितना 30 के नीचे जाते जाओगे, 30 के पास जाते जाओगे, उतना इनकन्सिस्टेंट रहे हो प्रिपरेशन में आप। देन लास्टली अगर स्कोर 30 से कम है तो भैया मेरा मानना ये है, आई बिलीव दैट यू हैव नॉट स्टार्टेड योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन एंड इट इज़ एग्जैक्टली द टाइम टू स्टार्ट योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, ढंग से कर लो प्लीज़। अगर 30 भी स्कोर नहीं है तो इसका मतलब नहीं, अभी तो नहीं है प्रीलिम्स प्रिपरेशन शुरू, ठीक है। इन लोगों के बहुत बढ़िया चांस है, इन लोगों के भी अच्छे चांस है, ये लोगों को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, और आप लोगों ने तो प्रीलिम्स प्रिपरेशन अभी शुरू ही नहीं किया है, एज इट इज़ सिंपल एज दैट। तो नाउ आपका टारगेट क्या होना है कि जल्द से जल्द ये 70 का स्कोर टच करे, ओके जल्द से जल्द, अगर नहीं टच कर रखा है तो एज सुन एज पॉसिबल। ये नहीं कि सर ने 10 मार्च बोल दिया तो अब बैठे आराम से, नहीं, जल्द से जल्द, मे बी इन द नेक्स्ट 3 डेज 4 डेज 5 डेज, एक्स्ट्रा आवर्स पुट करो, मेहनत करो, छोड़ो अब मेंस की प्रिपरेशन, लगो मेहनत करो यार। अब प्रीलिम्स नहीं होगा तो मेंस का क्या करोगे फिर, लगो अब मेंस की प्रिपरेशन छोड़ के, है ना। बाकी एग्जाम सब छोड़ो, साइड करो, हो गया, दो अब ये 3 महीने प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए। 25 फरवरी हो गई है, आज 26 मई को एग्जाम है, टाइम ही कितना बचा है। सो प्लीज़ 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 वर्क हार्ड, दिस इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट, ठीक है। तो इन द कमेंट सेक्शन लेट मी नो व्हाट इज योर स्कोर एंड ऑल्सो लेट मी नो हाउ डू यू प्लान टू इंक्रीज अपॉन योर स्कोर, व्हाट वर योर मिस्टेक्स दैट लेड टू दिस पर्टिकुलर स्कोर ऑफ योर्स, or what did you do right that led to this particular high score of yours, and then let me know in the comment how do you plan to go ahead and how do you plan to improve upon that score, किस सब्जेक्ट में कम रहा, उसको कैसे कोप अप करने वाले हो अगले 10 दिन में, along with the other plan that you are studying, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलें आगे, ओके। So from here at this particular point we are going to discuss the 90 days plan for people who have not started the prelims preparation yet or who want a concrete plan and who want to be with us. Already there are more than 50,000 people who are studying with us in the YPLP group, right? There are more like nearly a lakh people here now. अच्छा लग रहा है इस बोलने में nearly 99,000 people here now who are like following and doing things. So if you want to follow this particular plan, this 90 days plan, let me give you a brief outlook. सुन लो एक बार। स्टार्टिंग टुमारो, है ना, आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, आप ऑलरेडी लेट हो प्रिपरेशन, आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग टुमारो फॉर द नेक्स्ट 6 to 7 days, 26 27 28 29 1 2, फॉर नेक्स्ट 6 days, फॉर द नेक्स्ट 6 days यू हैव टू डू पॉलिटी का स्टैटिक करोगे अपना रिवाइज, टेस्ट लगाओगे, अगर किसी चीज़ के नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाओगे, और पॉलिटी का करंट अफेयर करोगे। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया, PT 365 का पार्ट 1 ऑलरेडी आ गया है, पार्ट 2 भी आ जाएगा अभी कल परसों में ही, दो दिन में आ जाएगा। सो यू विल बी डन विद करंट अफेयर्स ऑल्सो। देन PYQs ऑफ 2018 एंड 2019, दैट इसका मतलब क्या है, द मैड सीरीज, द MCQ एप्टीट्यूड डेवलपमेंट सीरीज जो हम ऑलरेडी करवा रहे हैं, उसकी पहली 7 वीडियोज़, तो डेली एक वीडियो उसकी आपको देखनी है, सो दैट यू आर इन लाइन with where your competition stands, ठीक है। Go and search in the playlist, you will find this particular MAD series, you will find the current affair playlist, you will find the MAD playlist, the MCQ aptitude development playlist, the PYQ playlist, and करो उसको। Then for the next नियरली 8 डेज, है ना, यहाँ पे मैंने आपको 6 दिया, फिर इकोनॉमी में ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा है तो 8 कर रहा हूँ। देन फॉर द 8 डेज यू हैव टू डू स्टैटिक ऑफ इकोनॉमी, PYQs ऑफ इकोनॉमी 10 साल के, देन MCQs इफ़ यू वांट यू कैन डू देम योरसेल्फ, है ना, 400 MCQs 500 MCQs, है ना, विजन के टेस्ट कुछ भी कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं वो कंसिस्टेंसी बन पा रही है, तो आई हैव मेड अ कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ 550 MCQs, उसमें से 400 ऑलरेडी करा दिए जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, प्लेलिस्ट में जाओगे मिल जाएगा, ठीक है। इको 550 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको कर लो। देन करंट अफेयर की वीडियो 10 तारीख तक आई जाएंगी इकोनॉमी की, तो आपका वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। 3 वीडियोस में इकोनॉमी का करंट अफेयर डन हो जाएगा PT 365, ओके। इस वीक में आपको PYQs करने हैं 2020 और 2021 के, उसी मैड की सीरीज से, ऑलराइट। फिर आगे चलते हैं। देन for the next 7 days you have to do geography, static, PYQs and tests and the mapping series of ours। आप चैनल पे जाओगे, अगेन आपको भारत दर्शन नाम से मैपिंग सीरीज मिलेगी, मैपिंग सीरीज बाय द नेम ऑफ भारत दर्शन, ओके। इट इज जस्ट 3 hour लॉन्ग, है ना, जस्ट 3 hour का लेक्चर सीरीज है। वॉच इट एंड बी डन विद मैपिंग। दिस इज कंबाइंड एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी कंबाइन करके पढ़ा है, पहली वीडियो खोल के देख लो, समझ में आ जाएगा कि कैसा फीडबैक है। देन हेयर यू विल डू द PYQ ऑफ 2022 एंड 2023 इन 7 दिनों में, क्लियर हो गई बात। देन लेट्स मूव अहेड 18 से 24 फॉर दिस पर्टिकुलर 7 days, these particular 7 days, let me just write it here, these particular 7 days what you will do environment, static, obviously current affair आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे ज्योग्राफी का क्योंकि कोई करंट अफेयर नहीं होता इसलिए मैंने मैपिंग ऐड कर दी है। एनवायरमेंट का करंट अफेयर होता है तो करंट अफेयर करना है, ये मैं मतलब कराई दूंगा ऑब्वियसली। यहाँ तक 24 तारीख तक आपका एनवायरमेंट की वीडियो सारी आ जाएंगी। देन आपको PYQs और टेस्ट करने हैं,
ठीक है, यू आर डन विद एनवायरनमेंट। सब में टेस्ट कर रहे हो, नोट्स बनाने हैं, पीवाईक्यूज कर रहे हो, समझना है कहाँ से किस थीम से आ रहा है, जहाँ पे रिसर्च लगे वहाँ रिसर्च करनी है, रिसर्च डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वाईपीएलपी ग्रुप पे डाला हुआ है। सो जस्ट एक्सेस दीज थिंग्स एंड लाइक गेट गोइंग। देन फॉर दिस पर्टिकुलर 9 days है ना, 9-10 दिन है ये, नियरली 9 to 10 days, मैं काउंट ही कर रहा था। यू हैव टू डू हिस्ट्री, ओके, स्टैटिक, पीवाईक्यूज, टेस्ट एंड शॉर्ट नोट्स। दिस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। वो मैट्रिक्स देख लेना जाके वापस, अगर नहीं देखी है, मैट्रिक्स दिए मैंने, उसमें शॉर्ट नोट्स और स्टैटिक को बहुत इंपॉर्टेंस है, पीवाईक्यूज टेस्ट का इंपॉर्टेंस कम है। जस्ट गो एंड सी दैट मैट्रिक्स इफ यू हैव नॉट। देन 4 अप्रैल से 8 अप्रैल साइंस एंड टेक करोगे, स्टैटिक, पीवाईक्यूज और टेस्ट, ठीक है। ये कैसे करना है, क्या करना है, मैं बता दूंगा। फिर 9 और 10 को आपका बैकलॉग कंप्लीशन डे रहेगा। 10 हेयर यू विल बी डन विद 45 डेज। तो 90 डेज आपके पास बचे हैं, 45 दिन में आपका पूरा आप लाइन पे आ जाओगे, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बस रिवीजन रहेगा, आपके टेस्ट हो जाएंगे, पीवाईक्यूज हो जाएंगे, 2 बार एमसीक्यूज हो जाएंगे, सारे जितने होने, स्टैटिक हो जाएगा, नोट्स बन जाएंगे, मैपिंग हो जाएगी, सब हो जाएगा इन दिस 45 डेज इफ यू फॉलो दिस प्लान डिलीजेंटली। भाई टाइम तो देना पड़ेगा, 8-10 घंटे लगेंगे इसमें ना, इफेक्टिव 8-10 घंटे रोज देने पड़ेंगे, एटलीस्ट 8-10 घंटे लगेंगे। सो यू हैव टू वर्क फॉर 8 to 10 hours डेली नाउ, एंड नाउ यू डोंट हैव एन ऑप्शन, राइट? So the final 45 days plan, where we will do an intense plan, a plan with highest intensity for 2 to 3 revisions will be given to you separately if you follow this 45 days plan। तो मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ कि आज ही 90 दिन का प्लान देके छोड़ दूँ और बाद में ठीक है हाँ चलता रहे इंसान अपने आप, नहीं। सो वॉट आई बिलीव इन हैंड होल्डिंग। सो इफ यू वॉन्ट मी टू हैंड होल्ड यू थ्रू दिस 45 days, मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। मेरे को बता दो कि येस वी वॉन्टेड फॉर द नेक्स्ट 45 days। अगर मुझे इनफ लोग दिखे तो मैं वाईपीएलपी ग्रुप में, वाईपीएलपी ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी हैं, सारी गाइडेंस ऑलरेडी है। मैं वाईपीएलपी ग्रुप में स्टार्ट कर दूंगा, आप लोगों के टारगेट्स भी देना, बट ओनली इफ आई सी सफिशिएंट नंबर है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? अभी बिल्कुल लेट नहीं हुआ है, इससे लेट करोगे तो लेट हो जाएगा। यू आर नॉट एट ऑल लेट नाउ। इफ यू फॉलो दिस प्लान यू विल कंप्लीटली बी इन लाइन विद पीपल हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर अ वाइल। दैट इज माई प्रॉमिस, यू विल बी कंप्लीटली इन लाइन, आई विल मेक श्योर दैट यू आर इन लाइन। बात समझ में आ गई? बट मेहनत लगेगी, ज़बरदस्त मेहनत और कंसिस्टेंसी लगेगी। एंड प्लीज़ आई हैव नॉट टेकन इन टू अकाउंट थिंग्स लाइक कि सर हमारा यूपी का एग्जाम आ रहा है, हमारा ये आ रहा है, वो आ रहा है। भाई अब टाइम है यूपीएससी को पूरी शिद्दत से करने का, तो अगर बाकी कुछ कर रहे हो उसका मैनेजमेंट खुद से करो, एज सिंपल इज दैट। कम सो, कम खाओ, कम दोस्तों से बात करो, मेहनत करो। दिन के 14 घंटे पढ़ाई करो, 13 घंटे पढ़ाई करो, उसमें से 3 घंटे यूपी को दो, 10 घंटे यूपीएससी को दो, 8 घंटे यूपीएससी को दो, 5 घंटे यूपी को दो। आपकी मर्जी कैसे करना है, दैट इज अप टू यू हाउ यू वांट टू डू इट, बट यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम टेलिंग यू दैट दीज आर द लास्ट 90 days, ओके, एंड द स्कोर दैट यू रिक्वायर फॉर प्रीलिम्स इज जस्ट 100। तो नियर अबाउट 10 नंबर तो सबके आ ही जाते हैं, नियर अबाउट 1 मार्क रोज भी चढ़ोगे, वो 1 मार्क रोज चढ़ना ना हाईएस्ट कंसिस्टेंसी और एफर्ट से होगा। So please make sure that you are doing all these things correctly. Please make sure of that. And I am here with you, I am there with you, I will hand hold you, I will guide you, I'll be there with you throughout this journey, but only if you are there for yourself। आप खुद के लिए तो खड़े हो, खुद की तो मेहनत करना शुरू करो, तब तो मैं खड़ा हूँगा आपके लिए। क्लियर? उसके बाद मेरी तरफ से कोई चूक रहे तो मुझे बताना। बात समझ में आ गई? ऑल्सो अ डिस्क्लेमर, इसमें पूरी वीडियो में मैंने सीसेट की बात नहीं की है, बिकॉज आई एज्यूम कि आप सीसेट कर रहे हो डेली, या फिर अब से स्टार्ट कर दोगे फॉर द नेक्स्ट 90 days, एटलीस्ट 1 से 1.5 आवर सीसेट डेली, नॉन स्टॉप, अनकॉम्प्रोमाइज्ड, एल्स प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा, अभी साइन मार के दे रहा हूँ। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलिए, लेट अस वाइंड अप दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। प्लीज टेक केयर, प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज अभी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई विल सी यू वेरी सून in the upcoming videos of the PYQs and the upcoming videos of the PT365, the current affairs series. Alright, so this is Satyam Jain signing off for now. Thank you so much for being here. We'll also meet you soon when we touch the 100K number, which is going to be very soon. Probably जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम ऑलरेडी 99 तो हो गया होगा। So thank you so much, ये सब आपकी ही करनी है, आपने ही कराया है। I'll forever be grateful। उसकी बात खैर अलग से करेंगे एक वीडियो में। For now, this is Satyam Jain signing off. Please take care of yourself. Jai Hind and Vande Mataram.